रानीगंज के वार्ड संख्या 89 मारवाड़ी पट्टी इलाके के रहने वाले 27 वर्षीय अनिर्वाण सिंह नामक एक युवक ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। जैसे मामले की खबर रानीगंज थाना को मिली, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए आसनसोल जिला अस्पताल भेज दिया। वहीं मौके पर रानीगंज बोरो 2 के चेयरमैन शहजादा अंसारी मृतक के घर पहुंचकर उनके परिवार वालों से बातचीत की और उन्हें मामले के निष्पक्ष जांच का आश्वासन भी दिया। वहीं आसपास के लोग और परिजनों ने दावा किया कि युवक ने नशीले पदार्थ खाकर अपनी जान ली है। फिलहाल असली वजह क्या है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चल सकेगा। एवं मौके पर मौजूद हमारे संवाददाता ने पूरे खबर की विस्तृत जानकारी ली। ফের একবার সামনে এলো খনি অঞ্চলে আত্মহত্যার ঘটনা। এখন আমরা ঠিক রয়েছি রানীগঞ্জ শহরের 89 নম্বর ওয়ার্ড মারোয়ারি পট্টি এলাকায়, যেখানে ঠিক এমনটাই শোনা যাচ্ছে। বছর 27-28-এর অনির্বাণ সিংহ তার নিজ বাসগৃহে কাল রাত্রে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছে। ঠিক এমনটাই আমরা জানতে পারলাম পাড়া প্রতিবেশী এবং তার পরিবারবর্গের লোকেদের সাথে কথা বলে। রানীগঞ্জ থানার পুলিশকে তৎক্ষণাৎ খবর দেওয়া হয়। পুলিশ সকালে আসার পর তার মৃতদেহটিকে রিকভারি করে নিয়ে যায় রানীগঞ্জ থানা এবং ইতিমধ্যে পাঠিয়ে দিয়েছে ময়না তদন্তের জন্য আসানসোল জেলা হসপিটাল। এসে পৌঁছেছে রানীগঞ্জ বোরো 2 চেয়ারপারসন মুজাম্মিল হোসেন শাহজাদা মহাশয়। তিনি পরিবারবর্গের সাথে কথা বলছে। পুরো 89 নম্বর ওয়ার্ড শোকে আচ্ছন্ন এবং পরিবারবর্গ ভেঙে পড়েছে কান্নায়। আরও বিস্তারিতভাবে আমরা কথা বলে নেব ওনার পরিবারবর্গের লোকের সাথে। আসুন জেনে নিই কী কারণে এরকম ঘটনাটি অনির্বাণ সিংহ ঘটিয়ে ফেললো। আরও বিস্তারিত জানতে সঙ্গে থাকুন, আমি সম্রাট। पूरा बीत गया, बीत गया। फिर हम पास में सोने गए तो देख रहे पूरा बाथरूम ठंडा, फिर लुंगी में बाथरूम हो गया। अब धड़धड़ा करके हम लेके दो तो जाते रहते तो कारुड़ियों पर ध्यान नहीं दिए। और तो उसके আমার পেটটা ভেতরটা জ্বলছে, আমাকে স্প্রাইট দাও, স্প্রাইট আধটা খেলো, মানে কোটাল খুব খাচ্ছিল, একদম চিল ঠান্ডা জল। কোনো ফার্স্ট স্টেশন বা কিছু বাইরে কাজ ওসব কিচ্ছু নাই। হাসি মুখেই ছিল। নবদ দোকান 12:30টার সময় চানাচুর কিনলো, বিটলা দোকানে পুড়িয়া কিনলো, এসে পরে এখানে মোবাইল ঘাটছিল, আমার মোবাইলে গেম খেলে। আমাদের সঙ্গে কোনো কিছু নাই। আমার সেটা তো আমাকে পারিবারিক অশান্তি কি ভুগছিল না ভুগছিল, এবারে ওর বউয়ের সঙ্গে ওর কি হয়েছে না হয়েছে আমি কিচ্ছু জানি না। আমাকে কিচ্ছু কোনোদিন বলে নাই। আগে তো নাতিটাকে ছেড়ে দিয়ে যেত আর বিকালে নিয়ে চলে যেত, সারাদিন নাতিটা আমার কাছে থাকতো। তারপরে একদিন আমি ওর সঙ্গে কথা কাটাকাটি হচ্ছে, আমি ভেতরে ছিলাম, ও এখানে বসছিল আর ও এসে পরে এখানে দাঁড়িয়ে ও আমাকে শোনাচ্ছেন, আমাকে শোনায়। তোমাকে কেন বললে যে তোমাকে বলে নাই, আমাকে সকাল থেকে চলতেই থাকতো। কি নাম ছিল আপনার ছেলে? অনির্বাণ সিনহা। অনির্বাণ সিনহা। আপনার নাম? অনিতা সিনহা। ये मवाली पट्टी में अभी मैंने सुना कि लाली का लड़का सुसाइड कर लिया। सुनने के बाद मैं आकर देखा कि बॉडी तो यहाँ है नहीं, थाना ले गया और उसके माँ बाप बोल रहा कोई ऐसा बात नहीं हुआ, कोई झमेला नहीं, किस मकसद से वो सुसाइड किया है। और बता दिए उसके माँ कि कार्बेट खाया था और क्या खाया पता नहीं। जाते हैं थाना, देखते हैं उसका जो पोस्टमार्टम के लिए बॉडी ले गया थाना जाते हैं, देखते हैं उसका जो प्रोसेस है उसका काम को किया जाएगा। जितना से जल्द पोस्टमार्टम होकर जैसे चल आए और हम लोग उसका अंतिम संस्कार का इंतजाम किया जा रहा है। ঘটনা তো ভালো করে আমরা জানি নাই। আচ্ছা, কি শুনলেন এখানে? এইখানে আমি খবর শুনলাম আমার ছেলেটা কেন বিষাক্ত জিনিস খেয়ে মারা গেছে। থানা থেকে এসেছিল লোক, এসে বডি নিয়ে চলে গেছে, এটাই জানি আর কি। এই জায়গাটার নাম? মারওয়াড়ি পট্টি। আপনার নাম? আমার নরেশ রজক। ঘটনাটা সেটা আমি কিছু বলতে পারছি না। কি অবস্থায় দেখলেন? আমি রাত্রে দেখলাম পুরো পেচাপ করে দিয়েছিল, প্যান্ট খুলে ফের খাটে শুয়ে দিল। আচ্ছা, এই রুমের ভেতরে ছিল? রুমের ভেতরে। পুরো ওটা সেন্স ছিল? হ্যাঁ, তখন তো জল খেলো ওই গেলাস। কি খেয়েছে বা কিছু ওইটা আমি বলতে হাতে কিছু পাওয়া গেছে না, ওর মা জানে। তারপর কি হলো, পুলিশকে জানালেন? তারপর আমি জানি না। উঠালেন, ওনাকে উঠিয়েছিলেন? হ্যাঁ, তারপর উঠিয়ে পরে আমি চলে এলাম, ঘুমোচ্ছিল তো। ওই বেডেই ছিল? হ্যাঁ। কি নাম ওনার ছিল? ববিন।
যন্তর ছেলে বউ। পুরো নাম? পুরো নামটা জানি না, ওর মা জানে সব কিছু। এই পাড়াতেই মানে এই মারোয়ারি পট্টিরই বাসিন্দা। আপনার কি নাম? আমার নাম রাকেশ, রাকেশ কি? রাকেশ কেওড়া। হ্যাঁ, केवड़ा है, আচ্ছা, এই জায়গাটার নাম? मेरा माराई पट्टी। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है, बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। GT रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। दैट मींस ऑफिस मॉल्स अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे। क्षेत्र में पुलिया निर्माण की मांग लंबे समय से की जा रही है। उसी मांग के अनुरूप दुर्गापुर पश्चिम के भाजपा विधायक लक्ष्मण घोरी इलाके का दौरा करने गई। घटना दुर्गापुर नगर निगम के वार्ड नंबर 14 के मुस्लिम बहुल इलाके नईम नगर की है। स्थानीय निवासियों की मांग है कि उस क्षेत्र में भरत कांटा के पास 2 पुलिया का निर्माण कराया जाए, जिसमें क्षेत्रवासियों को राष्ट्रीय राजमार्ग का सीधा लाभ मिलेगा। फिलहाल वहां के निवासियों को चक्कर लगाकर जाना पड़ता है। विधायक ने क्षेत्र का दौरा किया और कहा कि वो अपने फंड से 2 पुलिया का निर्माण के लिए पहल करेंगे। वो नगर निगम अध्यक्ष से उस पुलिया से संपर्क सड़क बनाने का भी अनुरोध करेंगे। यदि ऐसा संभव हुआ तो उस विशाल क्षेत्र के लोगों को लाभ होगा। तो एलेन এখানে দেখলেন স্থানীয় লোকের আপনার কাছে একটা ডিমান্ড রেখেছিল যে আমাদের কালভার্ট করে দিতে হবে। তো কি বলবেন এই কালভার্টটা, কি বলবেন এই কালভার্ট দেখার জন্য কি করলেন? দেখুন, ওনাদের এই এলাকা থেকে বহু মানুষ দেখলেন যে এখানে এই রোডটা বহুদিন বন্ধ হয়ে গেছে এবং কালভার্টের বিভিন্ন এলাকা জল এসে বেরিয়ে যাচ্ছে এখানে। তো বেনাচিরির সঙ্গে এই যে লিঙ্ক রোড, আমাদের কোর্ট মোড়, এই যে সংলগ্ন যে দ্বিতীয় রোড আছে, দ্বিতীয় রোড থেকে যদি এটা হয়ে যায়, এই কালভার্ট দুটো হয়ে যায়, তাহলে পুরো এলাকার মানুষ সুবিধা পাবে, কয়েকটা গ্রামে সুবিধা পাবে। অনেক রাস্তা ঘুরে যেতে হয়, সেটা সুবিধা হয়ে যাবে। এই রাস্তা দীর্ঘদিন হয়নি। আমি আজকে এখানে এসেছিলাম, ওনারা বলেছিলেন, আমাকে অনুরোধ করেছিলেন, আমি এখানে এসেছিলাম, দেখে গেলাম। শুধু এটা নয়, এই রাস্তাটাও আছে, এই রাস্তার সঙ্গে দুটো কাভার করতে হবে। এটা যদি একটা বড় টাকার খরচা, তবুও আমি মেয়রের কাছে অনুরোধ করবো, যদি কর্পোরেশন বা বিধায়কের ফান্ড আমি করবো, যদি কর্পোরেশন এই রাস্তাটা করে দেয়, আমার সুবিধা পয়সা, আমার পয়সা যদি কাভার দুটো হয়ে যায়, তাহলে গোটা এলাকার মানুষ সুবিধা হবে। সেই উপরে এসেছিলাম, আমি দেখে গেলাম, আমি কথা দিয়ে গেলাম যে অবশ্যই রাস্তা হওয়া উচিত। দুর্গাপুরের স্বার্থে, এলাকার মানুষের স্বার্থে যেটা হয়ে যায়, তাহলে সমস্ত এলাকার মানুষ সুবিধা পাবে। সেই কারণে এখানে আসা, ভিজিট করলাম। এটা মনে হচ্ছে অবশ্যই করা উচিত, কারণ মানুষের এখানে অনেক ঘুরে যেতে হয়, অনেক অসুবিধা হয়, যানজট তৈরি হয়, যেটা হয়ে যায় মানুষের সুবিধা পাবে। এই জন্য আসা, আমি দেখে মনে হয়েছে এটা করা উচিত, আমি অবশ্যই এটা করবো, এটা কথা দিয়ে গেলাম। ঠিক আছে। तो नईम नगर में रहते हैं और नईम नगर के नाते स्थानीय बासिंदा के लिए आप लोग MLA साहब के पास क्या डिमांड रखे? ये जो है ना, ये भरत कांटा से एक कलभट जो है देने से नईम नगर से जुड़ जाता है सपन गली तक। इस कलभट का बहुत दरकार है। इससे जो है यहाँ जो मेन गेट में जो भी बच्चे लोग जाते हैं, वो थर्ड लाइन तो है नहीं, रॉन्ग साइड से जाते हैं, तो बहुत सारा जो है कि डर बना रहता है सब समय। तो MLA साहब देखे तो MLA साहब आश्वासन दिया कि मैं करवा दूंगा। आपका नाम? मेरा नाम हुआ शेख सज्जाद उर्फ लाल बाबू। बोले हम लोग देखे कि MLA साहब जी आए हैं परिदर्शन में, आप लोग उनके पास क्या डिमांड रखे हैं? हमारे इलाका में MLA साहब हमारे आए हुए हैं। हमारे इलाका में ये एक रास्ता है जिसको हम लोग चालू करना चाहता है, जिसके कन्वर्ट के लिए 2 कन्वर्ट है, जिसके लिए नहीं चालू हो रहा है। ये हमारे लोगों को आने जाने के लिए, मेन गेट आने जाने के लिए बहुत आसान होगा। हमारे MLA साहब आए हुए हैं, इनको हम लोग दिखाया है, अब इनकी बाकी राय इनकी है। माने आप लोग इनके पास गुहार लगाए थे कि हम लोग ये हम लोग इनके पास गुहार लगाया है कि ये बना दे तो हम लोग के लिए बहुत सुविधा होगा। तो MLA साहब जी देखें, क्या बोले आप लोग? MLA साहब देखें, देखने के बाद बोले कि ठीक है, हम लोग इसको बना देगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम SK मोहम्मद आलम। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है, बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। GT रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। दैट मींस ऑफिस मॉल्स अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे। दुर्गापुर के न्यू टाउनशिप थाना अंतर्गत कालीगंज ग्राम में शनिवार मार्क्सवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से चुनाव लड़ रहे पंचायत प्रत्याशी प्रशांत रोहिदास के घर में घुसकर अराजक तत्वों ने उनकी जमकर पिटाई कर दी।
इस दौरान बीच बचाव करने आए गर्भवती पत्नी पर भी हमला किया गया। मारपीट में पति पत्नी दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के लिए उन्हें दुर्गापुर के विधाननगर महकमा अस्पताल भेजा गया। घटना के बाद माकपा ने हमले के पीछे तृणमूल कांग्रेस एवं भाजपा के समर्थकों पर आरोप लगाया। खबर मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई और मामले में शामिल 3 लोगों को हिरासत में लिया। उल्लेखनीय है कि माकपा प्रत्याशी प्रशांत रुईदास कालीगंज ग्राम के रहने वाले हैं, जो पंचायत चुनाव में पंचायत समिति पद के लिए प्रत्याशी के तौर पर खड़े हुए हैं। सूत्रों ने बताया कि प्रत्याशी के तौर पर खड़े होने के बाद से ही प्रशांत पर विरोधी दल द्वारा विभिन्न तरीके से परेशानी की जा रही थी। प्रशांत के घर के समीप खाली जगह को कुछ लोगों ने बांस से घेराबंदी कर दी थी, जिससे प्रशांत को घर में आने जाने में परेशानी हो रही थी। इसी घटना को केंद्र कर शनिवार की सुबह प्रशांत घर के समीप घेरा दिया, जमीन को मुक्त कराने का प्रयास में था। उसी दौरान कुछ लोगों ने लाठी रॉड से उन पर हमला कर दिया, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा। इस दौरान उनकी 7 माह की गर्भवती पत्नी बीच बचाव करने आई तो उन पर भी हमला कर दिया अपराधियों ने, और जिसके बाद वो फरार हो गए। इस दौरान लोगों के साथ मीडिया कर्मी की भी बहस हो गई। आक्रोशित लोगों ने 2 मीडिया कर्मियों की भी लात घुसे से पिटाई कर दी। घटना के बाद इलाके में उत्तेजना फैल गई है। सूचना मिलते ही न्यू टाउनशिप थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची एवं 3 लोगों को हिरासत में ले लिया। दूसरी तरफ घटने के खिलाफ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से थाने के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया गया एवं घटना में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार करने की मांग की गई। प्रदर्शन में माकपा जिला कमेटी सदस्य पंकज राय सरकार, राकेश शर्मा सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। बोलते আমি সিপিএমের পঞ্চায়েত সমিতি 17 নম্বর সংসদের ক্যান্ডিডেট পঞ্চায়েত সমিতি সিপিআইএম। তো ইদানিং আমাদের ওরা বুঝতে পেরেছিল যে ওরা দাঁড়াবে, ওই জন্য আমাদের রাস্তাটা, যে রাস্তা দীর্ঘদিন আমরা পেরোই, সেই রাস্তাটা তৃণমূলী লোকরা বন্ধ করে দেয়। তো তারপরে আমি দাঁড়াই, তারপরে হুমকি ধমকি দেয়, কোনো রকম কাজ হয়নি। তারপরে আজকে ইদানিং রাস্তাটার জন্য আমরা কিছু মিডিয়া এসেছিল, ওরা ছবি টবি তুলছিল, তো ওদেরকে মারধর করে। তারপরে আমাকে রাস্তায় ফেলে বুকে লাথি, কপালে, মুখে 5-7 জন মিলে বেধড়ক মার দেয়, মেরে আমাকে রক্তপাত করে দেয়। আমার বউ ছাড়াতে আসে, আমার বউকে মারধর করে, আমার বোনকে টানা হিজড়া করে জামাপত্র এসে সব ছিঁড়ে দেয়। বলছি এরা কারা, কোন দলের সমর্থক? এরা সব তৃণমূল করে, 2-একটা বিজেপি ছেলে আছে, তারা তৃণমূলের সাথে প্যাকটাপ আছে। দেখো মুক্তি দাস বলে আমি বিজেপি, কিন্তু তৃণমূল করে। আমাদেরকে মারধর, যে বেধরটা মারধর। আচ্ছা, চেনেন তাদের? যারা মারধর করেছে তারা কারা চেনেন? হ্যাঁ, আমাদের পাড়ারই সব। কারা, কি নাম তাদের? রুইদাস, দুলাল রুইদাস, মুক্তিপদ রুইদাস, দেবলাল রুইদাস, ফটিক রুইদাস, এইসব এরা বেধরক মারধর করে। এরা কোন পার্টি করে? এরা সব টিএমসি। আপনি কোথায় কোথায় চোট পেয়েছেন? আমার মুখে লাথি মেরেছে, কোমরে লাথি মেরেছে, তারপরে ঘুষি দিয়ে মুখ সব দেখছেন ফাটিয়ে দিয়েছে একবারে। পুলিশকে জানিয়েছেন? পুলিশ এসেছিল, পুলিশ এসে জানি না কী ব্যবস্থা নিয়েছে। আমার সব মাথা ঘুরে গেছিল। আমার নাম প্রশান্ত রুইদাস, প্রার্থী সিপিআইএম পঞ্চায়েত সমিতি প্রার্থী, 17 নম্বর সংসদ। আপনার সাথে আর কেউ কি আহত আছে? আহত বলতে আমার বাবাকে মারধর করেছে, আমার বোনকেও মারধর করেছে, কাপড় জামা ছেঁড়াছেড়ি করে দিয়েছে। আর আমার বউ আমাকে মারধর করছিল, তখন এসেছিলো ছাড়াতে, সেই সময় আমার বউকেও মেরেছে, মাথার মধ্যে ঘুষি মেরেছে। আমার বউ 7 মাসের প্রেগনেন্ট, ওখানে ঘুষি মারার ফলে সঙ্গে সঙ্গে ওখানে পড়ে যায়। বাড়িতে আমরা তুলে নিয়ে যাই, তারপরে অ্যাম্বুলেন্স করে এই হসপিটালে নিয়ে আসা হয়। কি মনে করছেন ভোটের আগে এইরকমভাবে মারধর, ভোট সুষ্ঠুভাবে হবে? ভোট তো আমার ভয় লাগছে, আমি নমিনেশন করেছি, আমার ভয় লাগছে যে আমাকে প্রাণে মেরে ফেলে দেবে নাকি, সেই চেষ্টা করছে নাকি জানি না। আমার সেই ভয়টা খুবই লাগছে। প্রশাসন বলতে কিছু নাই আমাদের রাজ্যে। এসেছিল পুলিশ তো আমাদের সাথে কোনো কথাই বলেনি। পুলিশ তোমার ওদের সাথে কথা বলে চলে গেল, আমাদের সাথে কথা বলেনি। কোনো রকম চোট লেগেছে না কী হয়েছে কোনো রকম জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ দলদাসে পরিণত হয়েছে। টিএমসির 5-8 কুত্তা পুলিশ। পুলিশের ওপর আমার কোনো ভরসা নাই, পুলিশের ওপর কোনো ভরসা নাই। এরা 5-8 কুত্তা পুলিশ তোমার ওদের হয়ে কথা বলছে। আপনার নাম? আমার নাম প্রশান্ত বিকাশ।
সিপিএমের প্রার্থী দিয়েছে তার জন্য ওকে প্রায় 9:30-10টার সময় ওকে মারধর করছিল। কারা টিএমসি তৃণমূল লোকেরা। চেনেন তারা কারা? হ্যাঁ, দুলাল রুই দাস, মুক্তি রুই দাস, ফটিক রুই দাস, অপু রুই দাস, ওরা সবাই মিলে ওকে মারামারি করছিল, ওকে মারধর করছিল। আর ওকে ছাড়াতে গিয়ে ওরা আমাকে মারে সদ্য, আমাকে পেটে লাথি মেরে ফেলে দেয়। আমার গলাতে একটা সোনার চেন ছিল সেটা পর্যন্ত ছিঁড়ে নিয়ে যায়। আর আমাকে বাঁচাতে গিয়ে ওকে আমার ননদকেও ওকে মারধর করে। আপনি কি অন্তঃসত্ত্বা? হ্যাঁ, আমি 7 মাসের প্রেগনেন্ট। আমার কাছে মেকিংটা আমার 90 ছিল। কতটা আতঙ্কে রয়েছেন? আপনার স্বামী একজন প্রার্থী, তাকে এরকম দিনের আলোয় মারধর করা হচ্ছে। এরকম করেই বাঁচা যায়? আর আমাদেরকে ঘরবন্দি করে রেখেছে পুরো একবারে। পুলিশ এসেছিল? পুলিশ এসেছিল তো, পুলিশ কোনো কাজ করেনি। কি নাম আপনার? আমার নাম দুলাল রুই দাস। दुर्गापुर से निमाय दास का रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है, बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। जीटी रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। दैट मींस ऑफिस मॉल्स अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे। पटना तख्त श्री हरमंदिर साहिब मैनेजिंग कमेटी के पदाधिकारी सरदार हरपाल सिंह जोहल को सुरक्षा संस्था की तरफ से सम्मानित किया गया। संस्था की तरफ से विमल देव गुप्ता एवं अरविंद सिंघानिया ने शॉल उड़ाकर उन्हें सम्मानित किया। संस्था के अध्यक्ष दलजीत सिंह वाधवा ने कुछ बातें कही। बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है। वैसे जोहल जी के संदर्भ में बहुत कुछ हम लोगों को सुनने, समझने, पढ़ने को मिलता रहा है, लेकिन आज संजोग इतना बढ़िया है कि आज हम लोग के बीच में आ गए हैं और हमारे गार्जियन स्वरूप बड़े भाई हैं। और इनसे अधिक तो मैं इनके संदर्भ में नहीं बताना चाहता, लेकिन इतना तो जरूर है कि एक सरदार लाख पर भारी पड़ता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और जहाँ जहाँ से जुड़े हैं, भगवान से प्रार्थना है कि हर जगह आपको सफलता मिले, हर गुरु जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो और समाज के लिए आप अपना कर्तव्य का निर्वाह करते ही रहें। और बीच बीच में इसी तरह से हम लोगों के तरफ से अचानक आकर के आशीर्वाद प्रदान करते रहें, यही हम लोग उम्मीद आपसे रखते हैं। और मैं फिर से छोटे भाई को भी धन्यवाद देता हूँ कि मेरे छोटे भाई भी आज संजोग से यहाँ आए हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये हमको आज समझ में संबंध है, लेकिन इनका क्षेत्र एक अद्भुत क्षेत्र है और इतना बढ़िया क्षेत्र है कि इनके क्षेत्र में सिर्फ सेवा ही है। तो ये जरूरी भी है, सेवा के साथ साथ थोड़ा वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए हम लोग का मदद भी करें, लोगों का मदद करें। हम लोग का जैसे आने वाले अतिथियों के स्वागत के लायक आशीर्वाद मिलते रहे, उनका बड़ा सामाजिक संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं, सिटीजन फोरम और लायंस क्लब और बहुत संस्थाओं में। उद्योगपति सिंघानिया साहब, मैं चाहता हूँ कि एक छोटा सा 2 शब्द में जैसा दलजीत सिंह जी ने व विमल जी गुप्ता जी ने बताया, श्री हरपाल सिंह जी जौहरी साहब के विषय में हम रानीगंज शिल्पांचल कोयलांचल के इस धरती के ऊपर उनका रानीगंज वासियों की तरफ से स्वागत करते हैं। बहुत ही सुन के गर्व होता है कि आप वर्णपुर से रहने वाले हैं और सिखों के 10वें जो धर्मगुरु श्री पूज्य श्री गुरु गोविंद सिंह जी जो पटना तख्त से जुड़े हुए थे, पटना तख्त में रहते थे और न जाने उनकी कितनी गाथाएं वहाँ उस और इनके साथ जो इनके कमल जी साहब का भी बहुत स्वागत। प्रेम से जोहर नेम है जौहरी जी जी। पटना सुना हुआ है कि पटना गुरु तख्त साहब के वहाँ पे एक गुरु गोविंद सिंह जी के एक शिष्य भक्त अनन्य भक्त हुआ करते थे जो जोहरी समाज से थे और उनकी आज वहाँ धर्मशालाएं बनी है और आप उसी से बिलोंग करते हैं। ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी गर्व की बात है। हमारे चैनल के माध्यम से पश्चिम बंगाल एवं भारत के तमाम सिख संगत को हमारे चैनल के माध्यम से संदेश दें कि उन्हें एक वाहिगुरु ने बाबा जी ने मेहर की है, उन्हें तख्त साहब का मैनेजिंग कमेटी में रखा है
पहले भी वो काफ़ी साल तक रहे हैं, काफ़ी काम उन्होंने किया है। और क्या क्या आगे हम टीवी चैनल के हमारे मेन चीफ दलजीत सिंह जी, बिनुल गुप्ता जी, हमारे भाई साहब सिंघानिया जी, आज हम अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझते हैं और गुरु कलगीधर पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी का अपार बख्शिश और रहमत मानते हैं कि ऐसे प्रिय सज्जनों ने जो समाज के अंदर एक बहुत बड़ा स्तंभ के रूप में इधर इस इलाके में काम कर रहे हैं, मीडिया के साथ जुड़े हैं, आपका सोशल वर्क के साथ ही हमारे भाई जुड़े हैं। इन्होंने आज हमें इसलिए बुलाया कि मैं तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहब का बतौर मेंबर फिर से दोबारा उस कमेटी के साथ जुड़ा हूँ और उस जुड़ाव को देखते हुए इन्होंने गुरु जी का जो आशीर्वाद हम सबको मिले, इसके लिए आज बुला के हमारा स्वागत किया। हम अपनी तरफ से और तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहब प्रबंधक कमेटी की तरफ से हम इनका बहुत ही शुक्रगुजार हैं और हम आने वाले समय में ये उम्मीद करते हैं कि तख्त श्री हरिमंदिर जी पूर्वी भारत का मार्गदर्शन करने के लिए सभी लोगों के लिए गुरु जी ने यहाँ स्थापित किया। हम आपको और भी इतिहास के बारे में थोड़ा सा बताते हैं कि गुरु जी का प्रकाश होने के पहले, गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश जन्म होने के पहले 9 दिन पहले सासाराम में थे चाचा फग्गू मल जी। चाचा फग्गू मल जी की हवेली में वहाँ थे। वहाँ से गुरु तेग बहादुर जी जो हैं वो असम में थे। उस समय कोई फोन का या इस तरह का संदेश देने का कोई प्रयोजन है गुरु गोविंद सिंह जी का, गुरु तेग बहादुर जी का आदेश आया माता गुजरी को कि इनका प्रकाश जो है पटना में जौहरी निवास में होना चाहिए। जो गुरु नानक देव जी के टाइम में जो पटना की स्थान है जहाँ गुरु जी का जन्म हुआ, उस मंजी को एक मंजी प्रचार के लिए धर्मशाला जो गुरु नानक देव जी के द्वारा वहाँ संगठित की गई थी, जौहरियों को सबको इकट्ठा करके वहाँ की संगत को। इसलिए हम आपको और भी बताना चाहते हैं कि बिहार के अंदर तकरीबन 800 से ज़्यादा मठ हैं जो गुरु नानक नामलेवा हैं, जिसका सेवा संभाल गुरु जी के बड़े पुत्र गुरु नानक देव का रूप, नारायण का रूप थे कौन? गुरु नानक देव जी। तो गुरु नानक देव जी का 10वां स्वरूप कौन हुए? गुरु गोविंद हुए प्रगटिया 10वें अवतार। फिर उसके बाद आगे क्या हुआ? गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की दे, यानी शब्द रूप में एकत्र होके आज पूरी दुनिया को सेध दे रहे हैं। ये है गुरु नानक देव जी का संदेश और गुरु गोविंद सिंह जी की जीवन का रहस्य। हम चाहेंगे कि आप लोग तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहब हमारे साथ में चलें, परिवार लेके जाएं, अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कहें कि तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहब में दर्शन करें। उसके बाद इधर राजगीर में जहाँ पर जो आज तक शीतल है वो भी आप दर्शन करिए। क्या आपको कुदरत का एक अलग से नज़ारा दिखेगा, जो गुरु जी का प्रत्यक्ष प्रमाण वहाँ एक रहस्य आपको दिखाई देगा, जो आपको दर्शन करके ही सब समझ में आएगा। आपको जाना चाहिए, संगत को जाना चाहिए। जो सिखिज्म है ना, ये पूरी मानवता को अपने कलावे में लेता है, अपनी बुक्कल में। इसलिए मानस की जात सब एक पहचान है। हम लोग सब एक परमात्मा के बच्चे हैं। हमको सबको एक मिल के चलना चाहिए और एकता का संदेश देना चाहिए, तभी हमारा भारतवर्ष आगे बढ़ेगा और मजबूत होगा। मैं फिर दोबारा अपना छोटा भाई दलजीत सिंह को, आप सबों हमारे बड़े भाइयों को, हम आपसे बड़े ही अंदर से खुश हैं और गुरु कलगीधर पातशाह के चरणों में अरदास करेंगे कि हमारा भाईचारा ऐसे ही बना रहे। वाहिगुरू जी का खालसा। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है, बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। GT रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स। ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। दैट मींस ऑफिस मॉल्स अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे। पश्चिम बर्धमान
वर्धमान डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन के सहयोग से रानीगंज स्पोर्ट्स असेंबली की तरफ से संस्था के ऑडिटोरियम हॉल में डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन पश्चिम वर्धमान डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं दुर्गापुर के पूर्व विधायक अपूर्व मुखर्जी ने फीता काटकर किया। उन्होंने कहा कि कोयलाचल की सुप्रसिद्ध स्पोर्ट्स असेंबली संस्था बच्चों एवं युवाओं के विभिन्न खेलकूद के प्रति जागरूक करने एवं खेलकूद से बच्चों का कैरियर बनाने के उद्देश्य से विभिन्न तरह के खेलों का आयोजन निरंतर करती है। संस्था में खेलकूद के सभी आयाम अत्याधुनिक वातानुकूलित इंडोर गेम्स उपलब्ध है। कोच की भी व्यवस्था है। प्रशिक्षक बच्चों को विभिन्न खेलकूद के प्रति महारत हासिल करवा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन टूर्नामेंट में दूर दूर से बच्चे प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आए हैं। उनके साथ उनके अभिभावक भी यहाँ मौजूद है। सभी को उन्होंने शुभकामनाएं दी। संस्था के प्रमुख पदाधिकारी सतीश खेमका ने कहा कि 2 दिवसीय इस टूर्नामेंट में विभिन्न स्थानों से खिलाड़ी आए हैं। रविवार की देर शाम को पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। सर, आज बैडमिंटन टूर्नामेंट है और आप आए हैं, चूँकि आप भी जुड़े हुए हैं सर इस खेल में, इस एसोसिएशन में आप भी प्रमुख हैं। हमको अच्छा लगता है। आज आसनसोल एकेडमी, रानीगंज एकेडमी आज 45 बच्चा लेके ये जो खेल का प्रोग्राम रखा है, बढ़िया है, क्योंकि बच्चे लोगों का अपलिफ्टमेंट के लिए ये लोग जो सोचा है, अब बच्चे जो खेल रहे थे वो भी देखे हमने। पश्चिम वर्धमान बैडमिंटन एसोसिएशन के तरफ से मैं रानीगंज एकेडमी को हार्दिक स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और बच्चे लोगों को हमारे तरफ से इंस्पिरेशन ये है कि बढ़िया खेले, आगे डिस्ट्रिक्ट स्टेट खेलने का भरपूर सुयोग यहाँ से ही मिलेगा। बैडमिंटन डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन एक है, उसका ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का टैलेंट हट नाम रखा है इस टूर्नामेंट का। ये अंडर 9 और अंडर 11 मतलब प्योर बच्चों के लिए ये टूर्नामेंट है, फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों। और लगभग 51 पार्टिसिपेंट्स हैं। हमारे आसपास आसनसोल, दुर्गापुर, कलना डिस्ट्रिक्ट से सभी जगह के बच्चे आए हुए हैं। 2 दिन का टूर्नामेंट है। आज सुबह स्टार्ट हुआ है, कल इसका क्लोजिंग सेरेमनी है। और देखने लायक टूर्नामेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते, इतने बड़े कोर्ट में 3-3 फुट के बच्चे, 7 साल, 7.5 साल के बच्चे भी इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं। ये बहुत गौरवान्वित बात है रानीगंज के लिए कि ऐसा मौका हमारे स्पोर्ट्स असेंबली को मिला कि ये टूर्नामेंट हम आयोजन कर पा रहे हैं, और इससे हमें बहुत आनंद प्राप्त हो रहा है बच्चों को खेलते हुए देख के। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है, बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। GT रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। दैट मींस ऑफिस, मॉल्स, अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे। पश्चिम बंगाल आसनसोल नॉर्थ थाना पुलिस आसनसोल रेलवे स्टेशन के 7 नंबर प्लेटफॉर्म इलाके में स्थित रेलवे यार्ड के जंगलों में फेंके गए एक नवजात बच्चे के लिए देवदूत बनकर सामने आई है। मौके पर मौजूद मुमताज आलम की अगर माने तो उनका छोटा भाई बकरी चराने के लिए रेल यार्ड गया था, जहां उसने झाड़ियों से बच्चे के रोने की आवाज सुनी और पाया कि वहां एक नवजात शिशु कपड़े में बंधा रो रहा है। जिसके बाद मुमताज ने तुरंत घटना की जानकारी नॉर्थ थाना पुलिस को दी। जानकारी के आधार पर नॉर्थ थाना प्रभारी तन्मय राय, जहांगीरी मोहल्ला पुलिस फाड़ी IC सुसोवन बैनर्जी, SI नजरुल हौदा मौके पर पहुंची और झाड़ियों में बच्चे को देख उसे वहां से जब्त कर अपने साथ ले गई। जिसके बाद उस नवजात शिशु को चाइल्ड वार्ड में भेज दिया और जिसके बाद अस्पताल के चिकित्सकों ने उसे ICU में भर्ती कर दिया, जहां बच्चे की अच्छे से देखभाल कर उसे जरूरी पॉजिटिव दवाइयां भी दी गईं। वहीं दूसरी ओर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है कि आखिर वह बच्चा उस तरीके से सुनसान झाड़ियों में कहां से आया। यार्ड पर था, कैसे चराने गया था तो वहीं पर देखा जंगल में रखा हुआ था। कौन गया था, किसको मिला? भाई, मेरा छोटा वाला भाई गया था गाय चराने, तो हमको फ़ोन किया तो हम बोला हाथ नहीं लगाना, ऑफिसर को भेज रहा हूँ यहाँ पहाड़ी से, वो देख लेंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ऑफिसर उनको ले आए ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल, ICU में अभी भर्ती है। कितना दिन का बच्चा लग रहा? ये तो लगता है सुबह का है। आज सुबह का बच्चा लग रहा? जी, सुबह का है। तो आपका भाई जब वहाँ पहुँचा तो कैसा, मतलब आपका भाई को कैसे पता चला कि यहाँ बच्चा है? वो की आवाज़ आया बच्चा रोने का,
तो वो जाके झांका तब देखा बच्चा। अभी तक उसको कुछ माता पिता को पता चला बच्चे का? क्या नाम हुआ आपका? किसका? आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद मुमताज आलम। बच्चा कहाँ पे मिला था? बच्चा मिला यार्ड चढ़ने वाला रास्ता है, उसी जंगल में। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। पांडवेश्वर विधानसभा क्षेत्र के परासकोल स्थित मां पद्मावती मंदिर यज्ञशाला में महिलाओं ने मां विपदारिणी व्रत की पूजा की। इस इलाके की 500 की लगभग महिलाओं ने विपदारिणी पूजा में शामिल हुई। पुरोहित चंडी भट्टाचार्य ने इस पूजा को करवाया। बताया जाता है कि यह विपदारिणी पूजा पति और बच्चे की मंगल कामना के लिए की जाती है। आषाढ़ मास की अमावस्या तिथि में यह विपदारिणी की पूजा महिलाएं करती हैं। पूजा के बाद महिलाएं प्रसाद ग्रहण करती हैं। पूजा के दिन नमक नहीं खाया जाता, केवल मीठा फल और मीठा भोजन ही ग्रहण किया जाता है। কেন হয়, কেন করেন আপনারা? ওই বিপুল আপু সব সংসারের মঙ্গলের জন্য করে। आप लोग कितने दिन से कर रहे हैं? आप कतदिन থেকে করছেন? পুরো 3 বছর। 3 বছর। আমি 10 বছর। মানে এটা করেন ছেলে মেয়ের জন্য, বাচ্চাদের জন্য। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। এই শোনো, এইবার প্রমোশন পেলে নিজের ফ্ল্যাট অন্তত নিতেই হবে। এই ভাড়া বাড়িতে আর থাকা যাচ্ছে না। আমি বালাজি রানীগঞ্জে আগে থেকেই খোঁজ নিয়ে রেখেছি। GT রোড পাঞ্জাবি মোড়ে 60টি ফ্ল্যাটসের প্রিমিয়াম অ্যাপার্টমেন্টস অলরেডি বুকিং শুরু হয়ে গেছে। দ্যাট মিন্স অফিস মলস সব এবার ঘরের সামনে। বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন 9432546328 নম্বরে। जामुड़िया थाना के श्रीपुर फाड़ी अंतर्गत बोगड़ा शमशान काली मंदिर राष्ट्रीय राजमार्ग पर शनिवार की दोपहर आगे निकलने की होड़ में 2 मिनी बसें आपस में टकरा गईं, जिसमें 12 यात्री घायल हो गए। सभी घायलों को आसनसोल जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जिसमें से 2-3 यात्रियों के सर में चोट आई है, बाकी सभी को आंशिक चोटें लगी हैं। पुलिस ने दोनों बसों को जब्त कर लिया है। दुर्घटना के बाद दोनों बसों के ड्राइवर, कंडक्टर एवं खलासी घटनास्थल से फरार हो गए। जानकारी के अनुसार शनिवार की दोपहर 2:15 पर मिनी बस नंबर WUB 360D7874 जो कि रानीगंज से चीनापुर की ओर जा रही थी, ठीक उसी समय पीछे से मिनी बस नंबर WUB 37A7776 जो कि रानीगंज से डीसरगढ़ की ओर जा रही थी। डीसरगढ़ की ओर जा रही मिनी बस ने चीनापुरी की ओर आ रही मिनी बस को पीछे से बोगड़ा शमशान काली मंदिर के निकट संतुलन खोते हुए बस में टक्कर मार दी। दोनों बसों में यात्री भरे हुए थे। टक्कर के बाद अफरा तफरी का माहौल मच गया और तो और एक यात्री भयभीत होकर बस से ही कूदने लगे। यात्रियों के बीच चीख पुकार सी मच गई। यात्रियों की चीख पुकार सुनने के बाद शमशान काली मंदिर के सेवक तथा आसपास के लोग वहां पे जुट गए और यात्रियों को बस से निकाला तथा श्रीपुर फाड़ी पुलिस को इसकी खबर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंची एवं एम्बुलेंस तथा अन्य वाहनों से घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया तथा दोनों बसों को जब्त कर श्रीपुर फाड़ी ले आई। दुर्घटना में डीसरगढ़ जाने वाली मिनी बस को अधिक नुकसान पहुंचा, जिसे क्रेन के माध्यम से हटाया गया। दुर्घटना में कुल 12 यात्री घायल हुए हैं। दुर्घटना की खबर पाकर ACP सेंट्रल प्रदीप मंडल घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने इस घटना में जिम्मेवार ड्राइवरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है। बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। GT रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। दैट मींस ऑफिस मॉल्स अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दिन की घोषणा होने के बाद पहली बार भाजपा नेत्री अग्निमित्रा पाल ने जामुड़िया ब्लॉक 2 में चुनाव प्रचार आज से शुरू किया। उन्होंने यह चुनाव प्रचार जामुड़िया की हीजलगोड़ा ग्राम पंचायत अंतर्गत बाडुल गांव में पार्टी कार्यक्रम के माध्यम से भाजपा प्रत्याशियों को पंचायत चुनाव में जीत दिलाने की अपील की। पत्रकारों के सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि सत्ताधारी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं पर मानसिक और शारीरिक अत्याचार कर रही है। नामांकन चरण में आतंक के कारण वे जामुड़िया में 112 ग्राम सभाओं में से केवल 32 हैं। वहीं 50 सोसाइटियों में 18 नामांकन पत्र जमा करने में कामयाब रहे।
हालांकि कल श्यामला इलाके में दीवार पर लिखते समय जामोरिया मंडल 2 के भाजपा अध्यक्ष रमेश घोष समेत 3 लोगों को जामोरिया ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष की मौजूदगी में बुरी तरह पीटा गया। उनके सक्रिय समर्थकों को घर घर जाकर धमकाया जा रहा है। फिर भी भाजपा इस पंचायत चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। वहीं जामोरिया ब्लॉक नंबर 2 तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष सिद्धार्थ राणा ने कहा कि अग्निमित्रा पाल बेबुनियाद आरोप लगा रही हैं। कल श्यामला क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ता तृणमूल की दीवार पर लिख रहे थे। वह उस समय उस रास्ते से गुजर रहे थे जब मामला उनके संज्ञान में आया तो उन्होंने इसका विरोध किया। देखो आज के तृणमूल कांग्रेस एवं ममता ব্যানার্জি এবং তার দল এবং তার নেতা মন্ত্রী কর্মীরা এত ভয় পেয়ে রয়েছে, কারণ বেসিক্যালি 12 বছর ধরে তারা কোনো কাজ করেনি মানুষের জন্য, চুরি করেছেন অবশ্যই, সেটাও একটা কাজ, এবং সেই কারণে আজকে তারা ভয় দেখিয়ে মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে চাকরি করছে, তাকে চাকরি থেকে ছাঁটাই করিয়ে দিয়ে মহিলাদের লাঞ্ছিত করে তারা অনেক রকম চেষ্টা করছে। প্যান বেঙ্গল এবং প্রিয়া মণ্ডল সেরকমই একটি ক্যান্ডিডেট যাকে ভয় দেখানো হয়েছে। যখন প্রিয়া মণ্ডল নমিনেশন উইথড্রল করেনি তার আগের দিন রাত্রে ভয় পেয়ে আমাকে ফোন করলো, দিদি এরকম আমার কাছে থ্রেটনিং আসছে যে আমার হাজবেন্ড। जामोरिया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है, बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। GT रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। That means ऑफिस मॉल्स अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे। आसनसोल के नॉर्थ थाना अंतर्गत श्रीनगर इलाके में घर के फंदे से लटकता मिला विवाहिता का शव। युवती के परिजनों ने ससुराल वालों पर आरोप हत्या का लगाया। मामला बीते शुक्रवार का बताया जा रहा है। मामले को लेकर पता चला है कि सलानपुर थाना के नाकरा जोड़िया निवासी सत्यनारायण महार की पुत्री सोनिया महारा की शादी 7 महीने पहले साल 2022 में आसनसोल अंतर्गत श्रीनगर निवासी सुरेश दास के पुत्र रोहित दास से हुई थी। परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से ही सोनिया के पति एवं परिजन युवती पर और अधिक दहेज देने एवं बदसूरत होने का ताना देते थे। परिजनों ने बताया कि पति रोहित दास बाइक समेत अन्य चीजों की निरंतर मांग करता एवं सोनिया को प्रताड़ित करता। मृत युवती के परिजनों ने बताया कि शुक्रवार रोहित के एक परिजन ने उन्हें फोन करके जानकारी दी कि उनकी बेटी ने फांसी लगा ली है। खबर पाकर सोनिया के ससुराल पहुंचे तो देखा कि घर पे ताला बंद है। उन्हें पता चला कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच के लिए जिला अस्पताल भेजा है। वहीं मामले को लेकर विवाहिता मृतक सोनिया के परिजनों का आरोप है कि रोहित एवं उनके परिवार के लोगों ने उनकी बेटी को मारकर रस्सी से लटका दिया। हालांकि मामले में पुलिस ने मृत युवती के पति रोहित दास से पूछताछ कर रही है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं घटना के बाद से ही रोहित के परिजन घर में नहीं है। इधर युवती की मृत्यु के बाद से ही परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। বিয়া দেওয়া 7 মাস হলো, বুঝলে তো 7 মাস দেওয়া হয়েছিল, মানে এনি টাইম টর্চার করতো মেয়েটাকে। গাড়ি দে, টাকা খুঁজ বাবার কাছে, বাবা মায়ের কাছে, বুঝলে। আর টাকা ওর যতটুকু আমাদের কথাবার্তা ছিল সব টাকা পয়সা ওকে দিয়েছি, ঠিক আছে। গয়না দিয়েছি 5-6 লাখকে। আমি করেছি মানে বিয়া, মানে 2.5 লাখ টাকা নিয়েছে। তারপরে ধরলেন মোটামুটি আয়োজন করে বিয়ে দিয়েছিলাম, 10-12 লাখ টাকা আয়োজনে আমি খরচ করেছি, বুঝলেন। আর ওই জন্যে ইয়ারা করলো আমাদের, তো মানে মেরে মেয়েটাকে টাঙাই দিয়েছে, কি বলবেন। আপনারা কিভাবে কি জানলেন, কি করে? আমরা জানি না, ওদের ঘরের লোক কেউ ফোন করে নেই। ওর একটা জামাই থাকে রাঁচিতে, ওই জামাই ফোন করে বলেছে আমাদের বাড়িতে যে তোমার মেয়ে সুসাইড হয়ে গেছে, সুসাইড করে নিয়েছে। তারপরে আমাদের বাড়ির লোক আসে, সব এসে দেখে বডি আমরা ওখানে পাইনি ওর বাড়িতে ওর সব পালিয়ে গেছে বাড়িতে। খালি একটা বুড়ি মতন মানুষ ছিল ওর বাড়িতে, আর বাকি কেউ ছিল না। তারপরে আমরা এসে জানলাম আমরা যে ওখান থেকে পাড়ার লোক বললো যে ও লোককে লেকে গিয়া হ্যাঁ ফাঁড়ি, কাসাইয়া মাহলা ফাঁড়ি। তো ফাঁড়িতে এসে আমরা সব কিছু জানলাম। তো আমরা বললাম ফাঁড়িতে ডেড বডি তো কোথায়, তো বলে হসপিটালে নিয়ে চলে গেছি ডেড বডি, ঠিক আছে। এখানে হসপিটালে এসেছি, কালকে আমরা ডেড বডিও দেখতে পাইনি। আর এখন যে পরে ওই ফাঁড়িতে যেয়ে পরে এখনই সব কাগজপত্র করে আমরা এখন হসপিটাল ঢুকছি। মেয়ে কোনো কাজও করছে না, কোন দিকে যাব, কোথায় যাব, কার কাছে যাব?
সব দিয়ে কাল 2টা পর্যন্ত আমরা কাকারা থানার মধ্যে বসেছিল, কি ডিসকাস করলো পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে। তারপর এখান থেকে বাড়ি গেছে, বললো সকালে আসো 11-12টার দিকে আপনাদের যা ফেসলা হবে করবো। এখন কোনো আমাদের এখনও জানকারি নেই। হসপিটালে আসছি তো বলছে 1 মাস লাগবে রিপোর্ট আসতে। 1 মাসের মধ্যে ডেড বডিটা গলে যাবে মাটির মধ্যে। 1 মাসের মধ্যে কি প্রুফ করতে পারবে পুলিশে আর প্রশাসনে? কি আমাদের কতদিন আগে বিয়ে হয়েছিল? বিয়েটা সামথিং 7 মাস, 6-7 মাস, বেশি সময় হয়নি। 6-7 মাস আগে বিয়ে হয়েছিল। তো আপনারা কি মনে করছেন যে কি হয়েছে, কি ব্যাপারটা হয়েছে ওর ফ্যামিলির লোকে ওকে টর্চার করেছে সুসাইড করার জন্য। ঠিক আছে, সুসাইড তো ও করবে না, ও আমাকে লাগছে এরা মেরে পরে এটাকে সুসাইড কেস বানাতে চাইছে। আমাদের তো পুরোপুরি কনফার্ম। ছেলের বাড়ির পক্ষ থেকে কোনো টাকা পয়সা বা কোনো কিছু চাপ ছিল আপনাদের? চাপ ছিল, একদম চাপ ছিল। কি ডিমান্ড করেছিল? ও ডিমান্ড করছিল কিছু তো হোক, ওকে টর্চার করছিল, টাকা পয়সা ডিমান্ড করছিল। বাইক চাই, নাইলে আমি আলাদা বিয়ে করবো, তোকে ছেড়ে দেবো, অমুক করবো, তোকে বাঁচার কোনো অধিকার নাই, সব লেখা আছে পেপারে। তো আপনার তুই মরে যা, তুই চলে যা, এরকম। আপনার আমার বোন আছে। কি নাম? সোনিয়া মাহারা। বাড়ি কোথায়? নাকড়াজুড়িতে। এখানে কার সাথে বিয়ে হয়েছিল, কতদিন আগে? এখানে রোহিত নামের ছেলের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল। রোহিত কি? রোহিত দাস। ঠিক আছে, তার বাড়ি হলো শ্রীনগর। আচ্ছা, ঠিক আছে, তার বাড়ির মেম্বার আছে, ওর একটা ননদ আছে, তার হাজব্যান্ড আছে, আর ওর মা মানে শাশ আর শাশুড়ি আর ওই হাজব্যান্ড। তার মধ্যে আর বাড়ির কোনো মেম্বার নাই, বেশি বড় মেম্বার নেই, ছোটোখাটোই পরিবার আছে। তার মধ্যে এইসব হচ্ছে, কী করে হইলো আমরা নিজে কোনো বুঝতে পারলাম না। আমরা তো সবাই বিয়ে বাড়িতে ছিলাম, বাইরে ছিলাম, আমরা এসে নিয়ে হঠাৎ আমরা জানতে পারলাম কি এমনি হয়ে গেছে। কবে হয়েছে এটা? কালকের ঘটনা। কাল রাত্রে 7টার সময় আমরা খবর পাইলাম, 7টা 7:30টার দিকে আমরা খবর পাইলাম। যে যথাই ছিল সব ছুটে এসেছি। কি খবর পেলে? আমরা খবর পাইলাম ওর নন্দইটা যার বাড়িটা আছে রাঁচিতে, ও সবকে কল করে জানকারি দিচ্ছে কি আপনার ভিডিও যে ছিল ও সুসাইড করে নিয়েছে, এরকম জানকারি দিচ্ছে। জবকি ও এখানে থাকে না, ও আর বাড়ি আলাদা জায়গায়। ও সবাইকে কল করে জানকারি দিয়েছে কি ও সুসাইড করে নিয়েছে। ঠিক আছে, আর যদি কেউ সুসাইড করে তো নিজের দরওয়াজাটা বন্ধ করে সুসাইড করবে, দরওয়াজাটা তো খোলা ছিল ওখানকার পাবে। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। এই শোনো, এইবার প্রমোশন পেলে নিজের ফ্ল্যাট অন্তত নিতেই হবে। এই ভাড়া বাড়িতে আর থাকা যাচ্ছে না। আমি বালাজি রানীগঞ্জে আগে থেকেই খোঁজ নিয়ে রেখেছি। জিটি রোড পাঞ্জাবি মোড়ে 60টি ফ্ল্যাটসের প্রিমিয়াম অ্যাপার্টমেন্টস অলরেডি বুকিং শুরু হয়ে গেছে। দ্যাট মিন্স অফিস, মলস সব এবার ঘরের সামনে। বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন 9432546328 নম্বরে।